میں کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی. I'm sorry. اگر میں نہیں لکھا you cannot touch me. میں آپ کی جاگیر نہیں ہوں. کیا پاکستانی شوبز کی اس معصوم اداکارہ کو ریمپ واک کے دوران کسی نے جان بوجھ کر دھکا دیا اور پھر برسوں تک اسی واقعے کو ہنسی کا موضوع بنایا جاتا رہا؟ کیا یہ سچ ہے کہ ایک مشہور ہدایت کار نے کئی ٹاک شوز پر کہا کہ وہ اس اداکارہ کے ساتھ دوبارہ کبھی کام نہیں کریں گے؟ مجھے نہیں مزہ آیا. میں بڑا پچھتایا کہ میں نے کیوں کام کیا، اس حد تک چلا گیا تھا. یہ بات سالوں تک اس کے کیریئر کو اندر سے کھاتی رہی. کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک وائرل ویڈیو کے بعد اس نوجوان اداکارہ کو جو آفر دی گئی وہ اتنی گھٹیا تھی کہ سن کر آپ کا خون کھول اٹھے گا؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا یہ لڑکی جو آج شوبز میں کم نظر آتی ہے واقعی ہار مان چکی ہے یا اس نے آخرکار بولنا شروع کر دیا ہے؟ آج ہم ان تمام سوالات کے جواب دیں گے، ایک ایک راز کھولیں گے. یہ ہے علیزہ شاہ کی اصل کہانی، بالکل شروع سے لے کر آج تک. تو ذرا رکیں اور بیٹھ جائیں اور پوری توجہ سے سنیں. 9 جون 2000 کو کراچی میں ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام علیزہ رکھا گیا. گھر میں محبت بھرا ماحول تھا، نہ کوئی بھائی نہ کوئی بہن. وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، ماں باپ کی آنکھ کا تارا. لیکن جب یہ بچی صرف 6 برس کی تھی، 6 سال، جب بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں تب اسے کیمرے کے سامنے لایا گیا. پاکستان کے عظیم کرکٹر وسیم اکرم کے ساتھ ایک اشتہار میں کام کا موقع ملا. اس بچی نے کیمرے کی طرف دیکھا، مسکرائی اور نادانستہ طور پر اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا. کراچی کے ایک عام سے گھرانے میں پلنے بڑھنے والی اس بچی کو اس وقت کہاں معلوم تھا کہ آگے کیا کیا آزمائشیں اس کا انتظار کر رہی ہیں. سال 2016. علیزہ شاہ کی عمر تھی صرف 16 برس. جب ہم عمر لڑکیاں امتحانوں کی فکر میں ہوتیں، اس وقت علیزہ نے شوبز کا دروازہ کھٹکھٹا دیا. ملا کیا؟ ایک چھوٹا سا کردار، ڈرامے، چھوٹی سی زندگی میں آئینہ کا کردار. نہ کوئی بڑا رول، نہ کوئی خاص مکالمہ، لیکن علیزہ نے اس معمولی سے کردار کو وہ محبت دی جو شاید بڑے بڑے تجربہ کار اداکار بھی نہ دے پائے. پھر 2017 آیا، ڈرامہ تیرے نال لو ہو گیا، ایک اور چھوٹا کردار. اس کے بعد پھر دلدل، پھر بساتے دل، پھر بندی. ایک کے بعد ایک، قدم با قدم، سیڑھی در سیڑھی، بغیر ہار مانے، بغیر تھکے. اور پھر آیا وہ ڈرامہ جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا. سال 2018، عشق تماشا. اس ڈرامے میں علیزہ شاہ نے پلوشا کا کردار ادا کیا، ایک ایسی لڑکی جو محبت میں اندھی ہے، جسے یہ معلوم نہیں کہ دنیا اسے دھوکہ دے رہی ہے. علیزہ نے اس ناسمجھ، معصوم اور تکلیف زدہ لڑکی کو اس گہرائی سے جیا کہ پورا پاکستان جذباتی ہو گیا. سال کے آخر میں ہم ایوارڈز کی رات آئی اور علیزہ شاہ کو ملا بہترین ٹیلی ویژن سنسنی کا ایوارڈ، صرف 18 سال کی عمر میں، اور پہلا بڑا ایوارڈ. لیکن یہ تو ابھی صرف شروعات تھی. اس کے بعد سال 2019 آیا، ISPR کا وہ تاریخی ڈرامہ جسے پورے پاکستان نے دیکھا، اور اس کا نام تھا عہد وفا. علیزہ کو ملا دعا کا کردار، ایک جذباتی، وفادار اور محب وطن لڑکی کا کردار. اس ڈرامے نے علیزہ کو صرف ٹی وی کی مشہور اداکارہ نہیں بنایا، بلکہ انہیں گھر گھر کا جانا پہچانا نام بنا دیا. پھر اسی سال آئی فلم سپر اسٹار، مائرہ خان، بلال اشرف اور ندیم بیگ کے ساتھ. علیزہ نے چٹکی کا کردار ادا کیا اور بڑے پردے پر پہلا قدم رکھا. 2019 کے اول و آخر تک علیزہ شاہ پاکستانی شوبز کا سب سے چمکتا ہوا نیا ستارہ بن چکی تھی. لیکن شہرت کے ساتھ آزمائش بھی آتی ہے، اور علیزہ کی اصل آزمائش ابھی شروع ہوئی ہی نہیں تھی. عہد وفا کی عکس بندی کے دوران پردے کے پیچھے ایک اور کہانی لکھی جا رہی تھی. علیزہ شاہ اور نعمان سمیع، دونوں جوان، دونوں مشہور، دونوں ایک ہی صنعت میں. پہلے انسٹاگرام پر ایک دوسرے کو فالو کیا، پھر ساتھ ساتھ تصویریں آنے لگیں، پھر ایک دوسرے کی تعریفیں. ان کے انسٹاگرام بایوز میں نئے عرفان نظر آئے، علینو اور نوا مزائے، یعنی ایک دوسرے کے ناموں سے مل کر بنائے گئے پیار بھرے نام. فینز نے دل کھول کر اس جوڑی کو سراہا. لیکن پھر آیا ستمبر 2020 کا وہ دن جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا. اچانک دونوں نے انسٹاگرام پر ایک دوسرے کو انفالو کر دیا، بایوز سے وہ پیارے نام بھی غائب ہو گئے. علیزہ نے اپنی بلی کی تصویر پوسٹ کی اور لکھا، میں دوبارہ پیدا ہوئی ہوں، شیر کی ماند سے نکل کر. کہانی
खत्म हुई। ये पोस्ट वायरल हो गई और फैंस समझ गए कि मोहब्बत का ये बाब अब बंद हो गया है। ना अलीज़े ने कुछ वाजे किया, ना ही नुमान ने। आज तक इस रिश्ते की असल हकीकत पर्दे में है, लेकिन वो लकीर जो दोनों ने मिलकर लिखी थी वो मिट चुकी थी। साल 2020, ड्रामा मेरा दिल मेरा दुश्मन। इस ड्रामे के हिदायतकार थे यासिर नवाज। शूटिंग के दौरान अलीज़े अंदर से टूट रही थी, नुमान से जुदाई का गम और ऊपर से काम का मुसलसल दबाव। बाद में यासिर नवाज ने कई टॉक शोज पर यह बात कही कि अलीज़े के साथ काम करना मुश्किल था और उन्हें यह प्रोजेक्ट कबूल करने का पछतावा हुआ। मुझे नहीं मजा आया, मैं बड़ा पछताया कि मैं क्यों काम किया, इस हद तक चला गया था मैं। उनकी अहलिया निदा यासिर ने भी कहा कि एक अदाकार को अपनी जाती जिंदगी को पेशा वराना काम से अलग रखना चाहिए। ये बातें सोशल मीडिया पर फैली और अलीज़े को बदनाम करने की मुहिम चल निकली। लोगों ने कहा ये रवैये में बुरी है, बदतमीज है, बड़ों की इज्जत नहीं करती। अगर इन इल्जामात ने अलीज़े को अंदर से तोड़ कर रख दिया, मगर उन्होंने खामोशी इख्तियार की। तब तक दिसंबर 2021 में किसी ने गाड़ी में बैठकर अलीज़े शाह की खुफिया वीडियो बनाई। वो सिगरेट पी रही थी और भाई गाड़ी चला रहे थे। वीडियो वायरल हुई, सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। लोगों ने गालियां दी, मजहब का हवाला देकर तनकीद की और उनके किरदार पर सवाल उठाए। लेकिन उससे भी ज़्यादा तकलीफ दे बात आने वाली थी। अलीज़े ने खुद बताया कि इस वीडियो के वायरल होते ही एक फिल्मी हिदायतकार ने उन्हें आइटम सॉन्ग करने का ऑफर दे दिया। बस एक सिगरेट वाली वीडियो और सनत ने फैसला कर लिया कि ये लड़की अब आइटम गर्ल बनने के लिए तैयार है। अलीज़े ने इस तजर्बे के बारे में लिखा, एक सिगरेट वाली वीडियो के बाद ये मान लिया गया कि मैं आइटम गर्ल हूँ। ये जुमला पढ़कर दिल भारी हो जाता है। अलीज़े ने FIA साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज करवाई। FIA ने वाजे किया कि बगैर इजाज़त किसी की वीडियो बनाना और फैलाना कानूनन जुर्म है और 3 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माने का मौजब बन सकता है। फिर दिसंबर 2021 में ब्राइडल कोचर वीक आया। डिजाइनर निसा हुसैन का शो था। अलीज़े रैंप वॉक कर रही थीं और उनके साथ थी मारूफ गुलकारा शाजिया मंजूर जो लाइव गाना गा रही थी। रैंप वॉक के आखिर में अलीज़े तवाज़ुन खोकर गिर पड़ी। वीडियो वायरल हुई, ट्रोलिंग शुरू हो गई और अलीज़े का ये लम्हा मजाक का मौजू बन गया। उस वक्त अलीज़े ने मामला संभालते हुए कहा कि एक हादसा था, दोनों के दरमियान सिमत की गलत फहमी हुई और उन्होंने शाजिया मंजूर का शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन 2025 में अलीज़े ने सच बयान किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि शाजिया मंजूर ने जानबूझकर उन्हें खींचा था और गिरने के बाद सहारा देने के बजाय वो मुख्तलिफ शोज़ पर इस वाक़े को हंसी में उड़ाती रही और उसकी नकलें उतारती रही। शाजिया मंजूर ने जवाब में कहा, खुदा की कसम मैंने उन्हें नहीं गिराया, वो खुद गिरी, वो मेरी बहुत प्यारी बच्ची हैं, शायद नज़र लग गई थी। अलीज़े मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। दोनों के बयानात एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे और सच आज भी एक सवाल बना हुआ है। फिर उसके बाद साल 2022 में एक शो वॉइस ओवर मैन में अदाकारा जरनिश खान से पूछा गया, अगर बदतमीजी का मुकाबला हो तो कौन जीतेगा? जरनिश ने बगैर सोचे कहा, चाहे सामने कोई भी हो, अलीज़े शाह जरूर जीतेगी। ये एक जुमला वायरल हो गया। अलीज़े ने जवाब में मुफ्ती मैनक की एक तहरीर शेयर की। मतलब ये था कि लोगों से ये उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हें समझेंगे, वो नहीं जानते कि तुम किस तकलीफ से गुजर रहे हो, बस मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। फिर 2025 में जरनिश खान ने निजी पैगाम में माफी मांगी और लिखा, मुझे बहुत पछतावा है, तुम्हारी वालिदा भी दुखी हुई थी, मैं उनसे भी माफी मांगना चाहती हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। और उसके बाद अलीज़े का जवाब था, माफी से इस नुकसान की तलाफी नहीं हो सकती जो तुमने पहुँचाया, मैं तुम्हें माफ नहीं करती। जब मेरी माँ मुझे खाना खिलाती थी तो वो तुम्हें भी अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी। मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, अल्लाह सब देख रहा है। ये जवाब सोशल मीडिया पर तूफान ले आया। कुछ ने कहा कि अलीज़े ने गलत किया, कुछ ने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त थी। यासिर नवाज बरसों तक मुख्तलिफ शोज पर अलीज़े का नाम लेकर कहते रहे कि उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल था। जनवरी 2026 में अलीज़े ने आखिरी वार्निंग जारी की। उन्होंने लिखा, मेरी आखिरी वार्निंग है यासिर नवाज को कि वो मेरा नाम किसी भी प्लेटफॉर्म पर ना ले। हमारा काम का रिश्ता 5 साल से भी पहले खत्म हो चुका है, मगर ये हर शो पर मेरा नाम घसीट रहे होते हैं। मेरे पास उनके खिलाफ
हर शो के सबूत मौजूद हैं। अगर उन्होंने दोबारा मेरा नाम लिया तो मैं हत्या इज्जत का मुकदमा दायर करूंगी। ये वार्निंग वायरल हो गई और एक बार फिर अलीज़े शाह सिर्फ मजलूम नहीं बल्कि डट कर खड़े होने वाली लड़की साबित हुई। फिर जुलाई 2025 में अलीज़े शाह ने अपने इंस्टाग्राम पर वो बातें कहीं तो शायद पाकिस्तानी शोबिस की कोई अदाकारा इस जुर्रत और खुलकर कहने की हिम्मत नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, मैं हर उस शख्स को सामने लाने जा रही हूँ जिसने मुझ पर जुल्म किया। मैं बरसों की ट्रोलिंग, मजाक और मीम से थक चुकी हूँ। आप लोगों को अंदाज़ा नहीं कि एक अदाकारा की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। उन्होंने हरासानी की बात की। उन्होंने बताया कि प्रोडक्शन हाउसेज में उन्हें वक्त पर मुआवजा अदा नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि टॉक शोज में फैन पेजेस ने उन्हें बार बार निशाना बनाया। ये किसी कमज़ोर इंसान की आवाज़ नहीं थी, ये एक जवान औरत की वो चीख थी जो सालों से दबाई जा रही थी और अब आग बनकर भड़क उठी थी। शोबिस सनत हैरान रह गई। सोशल मीडिया दो हिस्सों में तकसीम हो गया। कुछ ने कहा कि वो ड्रामा कर रही हैं और कुछ ने कहा आखिरकार कोई तो आया जिसने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। अलीज़े शाह सिर्फ एक अदाकारा नहीं बल्कि वो एक अच्छी गुलकारा भी हैं। 2021 में उन्होंने मारूफ मौसीकार साहिर अली बग्गा के साथ पंजाबी गाना बदनामियां रिलीज किया और ये गाना खूब मकबूल हुआ। उनके दाएं हाथ की कलाई पर एक टैटू है, फ्री स्पिरिट यानी आज़ाद रूह, और शायद ये दो अल्फाज अलीज़े शाह की पूरी शख्सियत का खुलासा हैं। वो सनत के दबाव में झुकने वाली नहीं हैं। जब ट्रोल होती हैं तो जवाब देती हैं, जब गिरती हैं तो उठती हैं, जब खामोश रहती हैं तो तूफान से पहले की खामोशी होती है, और जब बोलती हैं तो पूरी सनत को हिला कर रख देती हैं। अलीज़े शाह अभी सिर्फ 26 साल की हैं। उन्होंने 6 साल की उम्र में कैमरे का रुख किया और तकरीबन 20 साल बाद वो आज भी इसी दुनिया में हैं। लड़ रही हैं, हंस रही हैं, कभी कभी रोती हैं और फिर संभल कर दोबारा खड़ी हो जाती हैं। उन्होंने अवार्ड जीते, शोहरत पाई, चाहने वालों की मोहब्बत मिली, लेकिन इस सब के साथ साथ मिली वो आजमाइशें भी जो कमज़ोरों को तोड़ देती हैं। मगर अलीज़े नहीं टूटी। उनकी कहानी ये नहीं कि वो कभी ठोकर नहीं खाती, उनकी कहानी ये है कि वो हर बार उठती हैं। रैंप पर गिरकर उठने वाली लड़की, वायरल वीडियो के बाद FIA का दरवाजा खटकाने वाली लड़की, मशहूर हिदायतकार को कानूनी वार्निंग देने वाली लड़की, यही अलीज़े शाह है। पाकिस्तानी शोबिस की वो आज़ाद रूह जिसे बहुत से लोगों ने दबाने की कोशिश की लेकिन उन्हें कोई ना दबा सका, और जब तक ये आज़ाद रूह जलती रहेगी अलीज़े शाह का नाम जिंदा रहेगा। इस हवाले से आप लोग क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा।